لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. وقال اللہ تعالی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. بیان کو شروع کرنے سے پہلے حصول برکت کے لیے اور حصول اخلاص و محبت کے لیے آئیے ہم اور آپ سب مل کر ہمارے پیارے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں محبت کے ساتھ اور ادب احترام کے ساتھ درود شریف کا ہدیہ پیش فرمائیں. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ کے پیارے رسول حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر ہم نے شروع کیا ہے اور گزشتہ جمعہ کچھ باتیں مکمل نہ ہو پائی، اس لیے اول آئیے اسے پورا کر لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ بات آگے بڑھاتے ہیں. حضرت ایوب علیہ السلام کی سب سے بڑی خوبی جو اللہ کو بہت زیادہ پسند تھی وہ ہے شکر. یعنی آپ بہت زیادہ شکر گزار تھے. آپ کو معلوم حضرت امام غزالی سے سوال ہوا کہ جلدی کون راضی ہوتا ہے. غور کریں آپ، امام غزالی سے سوال ہوا. امام غزالی سے کسی نے پوچھا جلدی راضی کون ہوتا ہے، اللہ یا بندہ؟ امام غزالی سے کسی نے پوچھا جلدی راضی کون ہوتا ہے، اللہ یا بندہ؟ امام غزالی نے جواب دیا جلدی اللہ راضی ہوتا ہے، بندہ جلدی راضی نہیں ہوتا. امام غزالی نے جواب دیا جلدی اللہ راضی ہوتا ہے، بندہ جلدی راضی نہیں ہوتا. بندہ اگر مصلی پر بیٹھ کر ہاتھ اٹھا کر رب کے حضور دو جملے استغفار کے پڑھ لے تو رب راضی ہو جائے، یا چھوٹی سی کوئی نیکی بندہ کر لے تو اللہ راضی ہو جاتا ہے، یا کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر لے. یہاں تک کہ گناہگار خطاکار بندہ اگر کسی جانور پر بھی تھوڑا سا رحم کر لے تو اللہ راضی ہوتا ہے. تو اللہ جلدی راضی ہوتا ہے مگر بندہ جلدی راضی نہیں ہوتا. یعنی بندہ اگر اسے 1000 چیزیں دی گئی رب کی طرف سے، اگر اسے 1000 چیزیں دی گئی تو 1000 چیزیں جو اسے ملی ہے اس کو بھول کر جو ایک چیز اسے نہیں ملی ہے وہ یاد کر کے بندہ ناراض ہو. 1000 چیزیں اگر بندے کو ملے تو 1000 چیزیں ملنے پر بندہ خوش نہیں ہوتا، بلکہ جو ایک چیز اسے نہیں ملی اس پر ناراض ہوتا ہے. تو رب میں اور بندے میں امام غزالی فرماتے ہیں کہ رب میں اور بندے میں رب جلدی راضی ہوتا ہے، بندہ جلدی راضی. آپ کو معلوم بزرگوں کی تعلیم دیکھیے، شکر کو ہم لے چلے ہیں نا، شکر کو لے چلے ہیں. شکر کیا ہے؟ اور شاید شکر کے شین کے 3 نقطوں میں سے ایک بھی نقطہ ہم نے سمجھا نہیں ہے.
शुक्र। एक बुजुर्ग ने देखा शुक्र किसे कहते हैं जाने, कि हम शुक्र कब करते हैं और हम नाशुक्री कब करते हैं। अच्छा, बात आगे बढ़े इससे पहले जरा ये समझे कि अगर हम गौर करेंगे, अगर हमसे सवाल करें क्या हम शुक्रगुजार है कि नहीं है, तो 100 में 100 जवाब होगा कि हाँ हम तो शुक्रगुजार हैं। 100 में 100 जवाब ये होगा कि हम तो शुक्रगुजार, हम तो नाशुक्र, हम तो शुक्रगुजार हैं। मगर जब हम कहते हैं कि हम शुक्रगुजार हैं, मगर शुक्र के अगर हम पूरे पर्दे उठाएं तो असल में हम जानेंगे कि अरे बाप रे, हम तो जरा भी शुक्रगुजार नहीं, हम तो जरा भी शुक्रगुजार नहीं। कैसे? एक बुजुर्ग ने देखा कि एक इंसान सर पे पट्टी बांधे हुए है, जैसे कोई बीमार बांधता है ना पट्टी, सर पे पट्टी बांधे हुए है, और रास्ते में उनको मिला, पूछा भाई क्यों पट्टी बांधी है सर पर? तो उसने कहा कि मेरे सर में जरा दर्द हो रहा है इसलिए मैंने पट्टी लगाई, सर में मेरे दर्द हो रहा है इसलिए मैंने पट्टी बांधी है। वो बुजुर्ग रोने लगे, रोते 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 हिचकियां लेते लेते अपने घर चले। बस इतनी ही बात सुनी। उससे पूछा भाई पट्टी क्यों बांधी सिर पर? उसने बोला मेरे सिर में दर्द हो रहा है इसलिए मैंने पट्टी बांधी। रोने लगे, रोते रोते हिचकियां बन गई, हिचकियां लेते लेते घर गए और इतना रोने लगे कि आपस से बाहर लोगों को संभालना पड़ा, क्या हुआ, इतना क्यों रो रहे हैं? तो जवाब, अगर सोने से कीमती कोई चीज है तो उससे लिखने के लायक। वो बुजुर्ग जवाब देते हैं, जब मैंने उस आदमी से पूछा क्यों पट्टी बांधी, तो उसने बोला सर में दर्द है इसलिए पट्टी बांध कर घूम रहा हूँ। मुझे ख्याल आया बुजुर्गों की कहाँ नजर जाती है, इसीलिए हमारा ये हमारे सूफिया की, हमारे उलमा की ये तालीम है कि इस्लाम को समझने के लिए सबसे पहले अल्लाह के नेक बंदों को समझे, औलिया अल्लाह को समझे, बुजुर्गान दीन को समझे। अगर बुजुर्गान दीन को हमने समझा तो यूं समझे सारा इस्लाम हमने समझा। तो बुजुर्ग से पूछा क्यों इतना रो रहे हैं? आप फरमाते मैंने उस बंदे से पूछा क्यों पट्टी बांधी, तो उसने कहा मेरे सर में दर्द है इसलिए पट्टी बांध कर घूम रहा हूं। मुझे ख्याल हुआ कि इस बंदे को एक दिन सर में दर्द हुआ। गौर करें, हम कहाँ शुक्रगुजार होते हैं और कहाँ हम नाशुक्र हो जाते हैं। आप फरमाते इस बंदे को एक दिन सर में दर्द हुआ तो सर पर पट्टी बांधकर सारे इंसानों में ऐलान करता घूम रहा है। इसकी पट्टी इशारा कर रही है ना, पट्टी देखेंगे तो लोग पूछेंगे कुछ तो बात है, पट्टी से समझ में आएगा कि कुछ तो प्रॉब्लम है, सर में दर्द है, यानी ऐलान। इसके सर में एक दिन दर्द हुआ तो पट्टी बांधकर सर में सारे दुनिया में ऐलान कर रहा है कि देखो आज मेरा सर दर्द कर रहा है। क्या सारी जिंदगी भर अब तक सर दर्द नहीं किया था तो क्या ऐसे ही रोज ऐलान करता फिरता था कि देखो आज मेरे सर में दर्द नहीं है, देखो आज मेरे सर में दर्द नहीं है, देखो आज मेरे सर में दर्द नहीं है। एक दिन दर्द हुआ तो ऐलान, और वो सेहतियाब था तो कौन सा ऐलान, तब कौन सा रब का शुक्र अदा करते हुए गली मोहल्ले में ऐलान करता फिरा कि आज मैं अच्छा हूं, आज मैं सेहतयाब हूं। ये बुजुर्गों की सोच होती है। अल्लाह ताला ने हमें इतनी नेमतों से नवाजा है कि हम अगर हर घड़ी 1000 शुक्र अदा करें तब भी शुक्र अदा नहीं होता, मगर अफसोस हमारी तवज्जो उस तरफ नहीं जाती। आपको मालूम है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, सही हदीस मिशकात शरीफ में हुजूर इरशाद फरमाते हैं, पिछली उम्मतों में से एक आदमी होगा जिसने 500 साल बेरिया की इबादत की होगी। बेरिया यानी कि यूं कहिए कि बिल्कुल प्योर इबादत, एक ऐसी नेकी जिसमें कोई खोट नहीं, जिसमें कोई रिया नहीं, अच्छी नेकी,
اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کیے ہوئے نیک کام 500 سال. اور یہ کون ارشاد فرما رہا ہے؟ ہمارے پیارے حضور ارشاد فرما صحیح حدیث مشکات سے حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ پچھلی امتوں میں ایک آدمی جس نے 500 سال عبادتیں بے ریا کی، یعنی اللہ کی رضا کے لیے خالص عبادت کی، جس میں عبادت میں کوئی کھوٹ نہیں، عبادت میں کوئی کمی نہیں، اللہ کی رضا کے لیے عبادتیں بے ریا. قیامت کے دن جب وہ آئے گا اللہ کے سامنے کھڑا ہو، اللہ کی بارگاہ میں اسے کھڑا کیا جائے گا. ایک طرف اس کی 500 سال کی عبادتیں ہیں، اللہ کا حکم ہوگا اے فرشتوں اسے ہمارے فضل سے جنت میں داخل کرو، اے فرشتوں اسے ہمارے فضل سے جنت میں داخل کرو. وہ کہے گا اے اللہ اگر تیرے فضل سے ہی جنت میں جانا تھا تو پھر 500 سال کی عبادت کا کیا ہے؟ اے پاک پروردگار اگر تیرے فضل سے ہی جنت میں جانا تھا تو 500 سال کی عبادتیں بے ریا کا کیا؟ میری عبادتوں کا کیا ہوا؟ مجھے تو عبادتوں کے سلے میں جنت ملنی چاہیے نا، مجھے میری عبادتوں کے بدلے جنت ملنی چاہیے. 500 سال کی عبادتیں بے ریا میں نہیں کی ہیں، میری 500 سال کی عبادت کا کیا؟ اگر تیرے فضل سے ہی جنت میں جانا تھا تو تیرے فضل سے جنت میں تو ہر گناہگار بھی تو تیرے فضل ہی سے جنت میں جائے گا، تو میرے 500 سال کی عبادتیں بے ریا کا کیا ہوا؟ تو رب نے فرمایا اچھا تو تیری 500 سال کی عبادتیں بے ریا کا بدلہ چاہتا ہے، فرشتوں روکو ذرا انصاف کیا جائے، فرشتوں ذرا روکو اب انصاف کیا جائے. ایسا کرو اس کی 500 سال کی عبادت ایک پردے میں رکھو نیکیوں والے، اور دوسری طرف ہم نے دنیا میں اسے جو جو نعمتیں دی تھی، دنیا میں جو نعمتوں سے اسے ہم نے نوازا تھا، اس میں سے ایک نعمت یعنی اس کی آنکھوں کی روشنی، اس کی ایک نعمت، میری نعمتوں میں سے ایک نعمت اس کی آنکھ جو روشن تھی 500 سال تک، اس ایک آنکھ کو دوسرے پردے میں رکھو. اب دیکھو کیا بھاری ہوتا ہے. فرشتوں نے رکھ دیا، اور اب فرشتوں نے جب رکھا تو 500 سال کی عبادتیں بے ریا ہلکی ہوئی اور اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت وزندار. اب رب نے پوچھا بندے اب بول کیا کہتا ہے، اب بول کیا کہتا ہے، کہاں گئی تیری 500 سال کی عبادتیں بے ریا؟ تو حضور ارشاد فرماتے ہیں اے بندے اگر رب کا شکر ہر گھڑی 1000 بار ادا کیا جائے تو رب کی نعمتیں اتنی رب نے ہمیں عطا کی ہے جن کو ہم شمار نہیں کر سکتے. مگر افسوس پھر ہم اپنے جملے کو دہرائیں کہ بندے میں ہم ہو آپ ہو فطرت یہ ہے، ناشکری کا یوں کہیے کہ پہلو یہ ہے کہ 1000 چیز جو ہمارے پاس ہے ہم اس پر غور نہیں کریں گے، جو ایک چیز ہمارے پاس نہیں ہے ہماری توجہ بس اسی کی طرف جائے گی. جبکہ رب نے جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہے ان نعمتوں کو اگر ہم شمار کریں تو نعمتوں کا ہم شمار نہیں کر سکتے. آپ کو معلوم نعمتوں میں چلیے دوسری تمام چیزوں کو چھوڑ دیجئے، ہمارا اپنا جو جسم ہے، ہم بیٹھے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں، ہم بول رہے ہیں، ہم چل رہے ہیں، پھر رہے پکڑ رہے ہیں، ہم سوچ رہے ہیں، یہ جو اوپر سے نیچے تک سر سے پیر تک جو یہ ہمارا جسم ہے، اگر اس جسم پر ہی ہم اگر غور کریں تو اس جسم میں ہی میرے کریم رب کی اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر اسی جسم کی نعمتوں کو ہم شکر ادا کرنے کے لیے گنیں تو شکر تو گن تو نہیں سکیں گے، شکر ادا کرنا تو چہ جائے کہ بہت دور کی بات. آپ کو معلوم یہ جو ہمارا جسم ہے، آپ جانتے ایک اسٹڈی ہے، ایک ریسرچ اسٹڈی ہے، ہمارے جسم میں آپ جانتے ہیں کام کرنے والی نسیں، یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھنا صرف یہ آنکھوں کا کمال نہیں ہے. آنکھوں کے پیچھے
बहुत सारी नसें उसके लिए काम करती हैं, तब जाके ये आंखें देखती हैं। वरना आप कई ऐसे इंसान देखेंगे आंखें तो हैं मगर नजर नहीं आता। नजर आने के लिए सिर्फ आंखों का होना जरूरी नहीं है, उसके पीछे बहुत सारे मेरे रब की तख्लीक की हुई बहुत सारी नसें हैं जो काम करती है, तब जाके हमें अपनी आंखों से नजर आता है। ये अलग चीज है कि नसें काम करती है तो हम अपनी आंखों से देखते हैं। ऐ साइंसदान, ये तेरा कहना, तेरा मानना, तेरा जुमला है। हमारा जुमला अगर सुनना चाहता है तो सुन, हमारी आंखें देखती है क्योंकि हमारे रब का हम पर फजल है। हमारी आंखें देखती है क्योंकि हमारे रब ने हम पर करम फरमाया, हमारे करीम रब ने हमें नवाजा, हमारे करीम रब ने हमें वो नेमत अता फरमाई, इसलिए हम देखते हैं। हाँ, तू बाल की खाल निकालता रहे कि इसके पीछे कितनी नसें काम करती हैं। आपको मालूम, तहकीक ये है हमारे जिस्म में जो नसें काम करती है, जिस नसों के जरिए से हमारा पूरा ह्यूमन बॉडी का जो सिस्टम चलता है, अब वो नसों की लंबाई कितनी आप जानते हैं? उन नसों की लंबाई तकरीबन 96,000 किलोमीटर। यानी अगर उन नसों को बिछाया जाए तो ये दुनिया के 3 चक्कर लगा लें। ये नसें हमारे जिस्म में किसने रखी है? बताएं, कहां किसने रजिस्ट्री करवाई थी कि ये नसें हमें चाहिए? जिस्म में देखने वाली आंखें, कहां किसने नाम अपना जाकर लिखवाया रजिस्टर में कि ये आंखें हमें चाहिए जिससे हम देख सके? ये जो भी हमारे जिस्म में हर चीज है, हम अपने कानों से सही सलामत सुन रहे हैं, हम अपनी जबान से बोल रहे हैं, हम अपने जहन में सोच रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं, पैरों से चल रहे हैं। हाँ, पैरों से चल रहे हैं तो जरा कभी उनको पूछिए जिनके पैर नहीं है, जिंदगी भर घसीटते चलते हैं। आंखें हम देख रहे हैं, जरा कभी उनसे पूछे जिनकी आंखें नहीं है, अंधे हैं, अपने हाथों से हम पकड़ रहे हैं, उनसे पूछे जिनके हाथ कटे हुए हैं। जनाब, तब उन नेमतों का हम अंदाजा या उसकी कद्र और कीमत जान सकेंगे कि अल्लाह ताला ने जो जिस्म में हमें नेमतें अता फरमाई है, ये नेमतें अगर हम शुमार तो कर ही नहीं सकते, ना इसका शुक्र अदा कर सकते हैं। तो इसीलिए बंदे को चाहिए कि रब की नेमतों का शुक्र करें। और आप जानते हैं शुक्र करना ये कैसे होगा, यानी हम शुक्रगुजार हैं या हम शुक्रगुजार नहीं है, ये कैसे तय होगा? ये हम शुक्रगुजार हैं या हम शुक्रगुजार नहीं है, ये कैसे हम तय करें? हम तो सादे सुदे, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, छोटे मोटे इंसान हैं। तो हम अपने आप को अगर परखना चाहेंगे, हम अपने आप को देखना चाहेंगे, हम अपने आप को समझना चाहेंगे कि आया हम शुक्रगुजार है या नहीं, तो जनाब इसकी कुछ मिसालें हैं, इसकी कुछ चीजें हैं अपने आप को परखने के लिए। सबसे पहली चीज देखें शुक्रगुजारी के लिए, हम शुक्रगुजार बंदे हैं या नहीं, इसके लिए सबसे पहला दर्जा क्या आपको मालूम? कि मैं अपने आप को देखना चाहता हूं कि आया मैं शुक्रगुजार हूं या नहीं अपने रब का। इसका सबसे पहला दर्जा है, क्या तू अपने रब के आयद किए हुए फराइज को अदा करता है या नहीं? फराइज को अदा करना, अल्लाह ने नमाज फर्ज की, नमाज अदा करें। अल्लाह ने जो भी हम पर फर्ज किया है उन फराइज को अदा करना, और जिन चीजों से अल्लाह ने रुकने का हुक्म दिया है उन चीजों से रुक जाना, ये शुक्रगुजारी का सबसे पहला दर्जा है। जनाब, हम कहें कि हम शुक्रगुजार हैं और फजर की नमाज में अगर बिस्तर में सोते पड़े हैं तो अपनी जबान से ला कह के मैं शुक्रगुजार हूं, हकीकत में शुक्रगुजार तो नहीं हो। शुक्रगुजारी का सबसे पहला दर्जा, सबसे पहला मरहला कि शुक्रगुजार बंदा वो जो रब के हुक्म पर, अहकाम पर अमल करे। रब के अहकाम पर अमल ना करते हुए अगर कोई कहे कि मैं शाकिर हूं, नहीं, जब तूने तेरे रब का हुक्म ही नहीं माना तो तू शाकिर कैसे हुआ? आपको मालूम, एक किस्सा किसी लिखने वाले ने लिखा है, बड़ा प्यारा किस्सा लिखा है। एक करोड़पति
बच्चे को 100 रुपया दिया, उसने बोला 100 रुपए दो अब्बा लग रहे मुझे, 100 रुपया निकाल कर दिया। और अब वो जो लड़का जवान था, समझदार था, 100 रुपया लेकर उसका निकला, और 100 रुपया लेकर निकलने के बाद जो काम था खर्चा तो नहीं किया, जिसकी जरूरत वो तो पूरा नहीं किया। रास्ते में चलते हुए उस 100 रुपए के नोट को फाड़कर फेंक दिया। और बेटा, अब्बा को मालूम पड़ा कि बेटे ने ऐसा ऐसा किया, 100 का नोट दिया तब फाड़ के फेंक दिया। बड़ा अफसोस हुआ बाप को। अब वही बेटा, अब ये इतना लिखने के बाद लिखने वाले ने लिखा है कि अब वही बेटा दूसरे दिन फिर 100 रुपये मांगने आया। वही बेटा दूसरे दिन फिर 100 रुपया मांगने आया। तो सवाल का निशान है, क्या वो बाप उसे दूसरे दिन 100 रुपया देगा? क्या वो बाप दूसरे दिन उसे वो 100 रुपया देगा? जाहिर सी बात है, सबका कहना ये होगा कि 100 रुपया वो बाप उसे नहीं देगा। जब पहले दिए हुए की तूने कदर नहीं, जब पहले दिए हुए की तूने कदर नहीं की, तो फिर दूसरा तुझे कैसे? यही तो कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, ऐ बंदे तू मेरी नेमतों का शुक्र कर, मैं तेरी नेमतों को और बढ़ाता जाऊंगा। ऐ बंदे तू मेरी नेमतों का शुक्र कर, मैं तेरी नेमतों को और बढ़ाता जाऊंगा। अगर हमारे पास रब की दी हुई जो भी नेमतें हैं, हम उसको अगर बढ़ाना चाहते हैं, मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, उसको अगर हम ज्यादा करना चाहते हैं, तो रब का शुक्र अदा करें। कुरान में रब का वादा है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, कि तुम मेरा शुक्र अदा करो तो मैं तुम्हारी नेमतों को और बढ़ा दूंगा। वलइन कफरतुम, आगे अल्लाह इरशाद फरमाता वलइन कफरतुम, और अगर तुमने नाशुक्री की तो इन्ना अज़ाबी लशदीद, फिर मेरा अज़ाब बड़ा शदीद है। तो फिर मेरा अज़ाब बड़ा शदीद है। तो वाक़ई से किस्से से ये कि अगर तुमने पहली दी हुई रब की नेमतों की कदर की, शुक्र अदा किया, तो रब और नेमतें अदा फरमाएगा, और नेमतें रब अता फरमाएगा। और अगर हमने शुक्र अदा नहीं किया, बेकदरी की, नाशुक्री की, जो चीज है उस पर शुक्र करने की बजाय जो चीज नहीं है उसी पे रोते बैठे। रब ने जो नेमत दी है उस पर शुक्र अदा करने की बजाय याद कर कर के जो नहीं है उस पर भी नाशुक्र होते रहें, तो फिर इन्ना अज़ाबी लशदीद, अल्लाह का अज़ाब तो फिर शदीद है। आपको मालूम, हमने अर्ज किया था गुज़िश्ता जुमा, अव्वल तो चीज ये कि इंशाअल्लाह जब तक हम शुक्र क्या है इसे नहीं समझेंगे, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के वाक़े को शायद हम सही तरीके से समझ नहीं पाए। इसलिए शुक्र की चंद मिसालें आपके सामने हमने अर्ज की। अब देखिए शुक्र का तरीका। पहली चीज तो हमने अर्ज की कि शुक्र का सबसे पहला मरहला यह है कि जो शुक्र गुजार होगा वो रब के फराइज को अहकामात पर अमल करेगा, और रब ने जिन चीजों से रोका हुआ उन चीजों से रुकेगा। ये सबसे पहला दर्जा शुक्र का है। अगर ये सीढ़ी, ये माला नहीं चढ़ा तो आगे बंदा शुक्रगुजार हो ही नहीं सकता। सुने आप, सबसे पहला मरहला के फराइज पर अमल करना, जिन चीजों से रब ने रोका उससे रुक जाना, पहली चीज। और दूसरी चीज, जब भी किसी नेमत को याद करे, रब की बारगाह में शुक्र का एक सजदा करे। जब भी कोई नेमत याद आ जाए या नेमत मिल जाए या खुशी हो जाए, जब रब की तरफ से कोई भी नेमत मिले तो शुक्र का एक सजदा करे। शुक्र के सजदे की गुज़िश्ता जुमा हमने जब ये जिक्र किया था तो बहुत सारे हमारे जुमा के नमाजियों ने हमसे सवाल किया था बाद में कि शुक्र का सजदा कैसे करना चाहिए।
या शुक्र के सजदे का तरीका क्या है। तो आइए शुक्र के सजदे का तरीका हम आपको बता देते हैं ताकि शुक्र कैसे सजदा शुक्र करना। आप सुने, शुक्र का सजदा हर नेमत के हुसूल पर या नेमत के मिलने पर शुक्र का सजदा करना, ये खुद हमारे प्यारे हुजूर की सुन्नत है, हमारे प्यारे नबी की सुन्नत है। तो शुक्र का सजदा, और याद रखें अगर हो सके तो दिन भर में रोजाना एक बार शुक्र का सजदा जरूर करने का आदत है। अगर हो सके तो रोजाना दिन भर में एक बार कम से कम शुक्र का सजदा करने की आदत जरूर बना ले, और इस अंदाज से करे कि अल्लाह की नेमतों को सुबह से लेकर शाम तक अल्लाह ताला ने हमें किन किन नेमतों से नवाजा है, हो सके तो याद करने की कोशिश करे, और फिर सबको याद करके ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है कहते हुए शुक्र का सजदा करे। तो शुक्र के सजदे का तरीका समझ ले, इंशाअल्लाह फिर बात आगे आएगा। शुक्र के सजदे का तरीका यह है, जैसे हम नमाज के लिए खड़े होना चाहते हैं तो इस तरह से खड़े रहें, और शुक्र के सजदे के लिए वजू कंपलसरी है, बगैर वजू के शुक्र का सजदा नहीं होता। तो शुक्र के सजदे के लिए सीधा खड़े हों, और सीधा खड़े होने के बाद नियत करनी है, नियत की मैंने एक शुक्र के सजदे की वास्ते अल्लाह ताला के मुबारक काबा शरीफ की तरफ, इस तरह से, और फिर अल्लाह अकबर कहते हुए सीधे सजदे में चले जाना है। यानी शुक्र के सजदे में हाथ नहीं उठाना है, ना हाथ बांधना है। शुक्र के सजदे में हाथ नहीं उठाना है, ना हाथ बांधना है, बस सीधे खड़े रहें, खड़े रहकर नियत कर ले, नियत करके अल्लाह अकबर कहते हुए सीधे सजदे में चले जाना है। सजदे में जाकर सुब्हान रब्बियल आला 3 मरतबा या 5 मरतबा या 7 मरतबा या 11 मरतबा जितने अल्लाह ताला ने तौफीक दी उतने मरतबा पढ़ना है, और फिर अल्लाह अकबर कह के सीधे खड़े हो जाना है। शुक्र का सजदा पूरा। तो ये शुक्र का सजदा है, और शुक्र के सजदे के लिए जब खड़े रहें तो अल्लाह अकबर कह के सजदे में जाने से पहले रब की नेमतों को याद करते करते हो सके तो ज़बान से दोहराए, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है कि आज मेरे सर में दर्द नहीं हुआ, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है कि आज मैं फला जगह से सफर करके लौटा खैर आफियत से, ऐ अल्लाह तेरे करम से मैं पहुंचा, इसलिए मैं शुक्र का सजदा करता हूँ। जितनी नेमतों को याद कर सकते हैं याद करें, और फिर अल्लाह अकबर कह के सजदे में जाकर शुक्र का सजदा करें। ये शुक्र का सजदा करना ये हमारे प्यारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नत है। अल्लाह ताला हमें शुक्रगुजार बंदा बनाए, हर नेमत पर सुन्नत की नीयत से शुक्र का सजदा करने के अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। जाने अनजाने हमसे जो गलती गुनाह खता और नाशुक्री हो गई हो, अल्लाह अपनी रहमत से अपने करम से अपने फضل से अल्लाह ताला से अपने महबूब के सबको माफ फरमाए। वाह दावाना अनिल हम्द।